Hello, good evening, everyone. How are you guys? So, very excited. Modern history करेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है. Yes or no? Okay, let me. Yes, very quickly, everyone should just fill my chat box. थोड़ा enthusiasm दिखाओ. Today is the first class, guys. अभी अभी से ही सारा adrenaline rush नीचे हो गया सबका. आज तो फर्स्ट क्लास है. ओरिएंटेशन के बाद तो यस. सो हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी है, सिविल सर्विसेज की. आईएएस आईपीएस. अभी तो कईयों ने एकदम ख्वाब वाब भी देख लिए होंगे. नीली बत्ती की गाड़ी, है ना. आईपीएस वालों ने खुद को मतलब उसमें ड्रेस में अपने आप को इमेजिन कर लिया होगा, है कि नहीं है. ओके. A lot of students are asking me about notes and stuff. Guys, this orientation session has already been taken. Please go back, check the first lecture, and then come to the class. So we'll wait for 2 minutes more to see about the rest of the student and see if anyone is joining. And one more thing I would like to say, that this is the first class that I'm waiting for even 1 minute. Okay. In the next class, whatever the timings will be, I'll start there and then. So please make sure that you be here on time. बाकी क्लासेस में मैं पंचुअलिटी वो करूंगी. आई एम टॉकिंग टू द फ्यूचर ऑफिसर्स, सो I believe that you know what punctuality really means. So please be punctual in the class. Okay. Good evening, everyone. Good evening. Shall we start now? Okay. So as I'm taking your modern history, may I know what and where, like, why was the history divided into modern, ancient, and medieval? Due to the causes, due to the events led time to time, उसके बेसिस पे हमने हिस्ट्री को डिवाइड करा था. सो जस्ट फॉर योर, see, this is my very bad habit. I write and I frequently keep erasing. So please make sure that whatever you need to jot down in your notes, you do there and then. Okay. And if there is something that you want to note down and it has to be there, so just let me know ki ma'am, please do not erase the blackboard at the earliest. So I'll wait. Okay. Now, yes. So the history has been divided into three parts. Yes or no? Ancient, medieval, and modern. Okay? We are starting with the modern part. This PPT is so dark that I have to even see which highlighter will be used. Not even this. रेड तो जाएगा ही नहीं. हरा ट्राई करते हैं. वो हरा तो पहले हमने कर रखा था. वेरी वेरी बैड.
ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ मॉडर्न हिस्ट्री टुडे. Okay, I will keep the class first class scripts and small. Okay, so yep. So where was I? We have guys, no more talking in the chat box. Listen to me now. Okay, so modern India did not suddenly began in 1857. Sorry. Okay, modern India did not just suddenly came at play in 1857. Okay, we have to understand a lot of things to understand the rise of the British power and the freedom struggle that we have faced. Okay, we must understand what was the scenario going on in India. Okay, guys. So, ऐसा नहीं हुआ था कि एक टाइमलाइन आती है और एक उस टाइमलाइन से तुरंत वो चीज हो गई. कुछ इवेंट्स होते हैं, उसकी रिकरेंस एक टाइम फ्रेम से पहले ही शुरू हो जाती है. ठीक है, तो वैसे ही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुई थी. एंड टू अंडरस्टैंड आई विल use the bilingual. Okay, I'll even tell you in English and I'll even tell you in Hindi, so please don't worry. Okay, तो आप परेशान ना होए. मैं दोनों ही भाषाओं में आपको समझाऊंगी. तो कोई अगर ये कह रहा है कि मैम इंग्लिश के शब्द मत मत इस्तेमाल करिए, प्लीज वेट अ मिनट, आई विल ट्रांसलेट माई ओन वर्डिंग इन हिंदी अगेन. So I told you that modern India did not suddenly begin at 1857. It had some consequent event, and then the modern history came to play. To understand modern history, we need to understand the British power, the freedom struggle, and prior this, we need to understand what was the condition of India in 18th century. Now I'll translate myself in Hindi also for the Hindi students. कि जो आप ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं, एक 18th सेंचुरी का पार्ट पढ़ रहे हैं, वो तुरंत ही एक टाइम फ्रेम पे नहीं शुरू हुआ हो गया था जो कि 1857 है. उसमें कुछ ना कुछ होता रहा जिसकी वजह से ये चीज एक प्ले में आई, ये चीज हुई. ठीक है, फिर उसमें ब्रिटिश के पावर को हम अंडरस्टैंड करेंगे. जस्ट टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न हिस्ट्री प्रॉपरली, हम ब्रिटिश के पावर्स को पहले अच्छे से समझेंगे. हम हम इंडिया का सिनेरियो समझेंगे कि क्यों एक बाहरी आके हमारे ऊपर इस तरीके से हावी हो गया. हम ये भी समझेंगे. फिर हमने क्या परेशानियां झेली, कैसे हमें आजादी मिली, हम वो भी समझेंगे. एक एनसीईआरटी में लाइन है, अगर आप सब अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठे होंगे, तो देर इज अ लाइन इन एनसीईआरटी दैट सेज द decline of the Mughal Empire gave rise to regional state and created conditions for the establishment of British rule in India. Yes, I'm sorry for the background noises. Yes, कैन यू स्पॉट दिस लाइन? क्या आप अपनी क्या इस लाइन को आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं?
अब इस लाइन को डिकोड करिए। द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर gave rise to the regional state and created condition for the establishment of the British rule in India। तो 18th सेंचुरी वो ट्रांजिशन पीरियड था, उसको हम एक ट्रांजिशन पीरियड कह सकते हैं, जो कि ट्रांजिशन पीरियड था मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री से। जैसे ही मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था, हिस्ट्री इज ऑल लेड फ्रॉम इवेंट टू इवेंट। एक इवेंट के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से दूसरे इवेंट का राइज होता है। तो किस वजह से ब्रिटिश रूल इंडिया में आया? क्योंकि मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो चुका था एट द रैपिड रेट। तो वहां पे रीजनल स्टेट्स बनने लगे। अब आप बताइए, छोटे छोटे अगर आपने रीजन्स बना लिए हैं, जैसे अगर आप सोचिए एक क्लास में अगर आपको किसी को आपके क्लास में हावी बोलना है, जैसे हमारी ये क्लास है, जैसे समझिए, लेट मी टेक सम नेम्स, आर्यन ने अपना कुछ बना लिया, रिया ने अपना कुछ बना लिया, किसी ने अपना कुछ बना लिया। अगर मुझे आप लोगों के ऊपर रूल करना है तो मेरे लिए तो इजी हो जाएगा ना, क्योंकि एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। ठीक है। तो किसी भी बाहरी वालों को रूल करने के लिए वो चीज इजी हो जाएगी। तो कौन सा इवेंट था जिसने ब्रिटिश रूल को एस्टैब्लिश होने दिया इंडिया में? तो मुगल एम्पायर। ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जिसकी वजह से अब कॉज, मैंने पहले ही बोला था कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम कॉज पढ़ेंगे, इवेंट पढ़ेंगे, फिर कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। कॉज क्या था? मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। इवेंट में क्या हुआ? रीजनल स्टेट्स बने। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? इंडिया में ब्रिटिश रूल आ गया। ठीक है मैम, आई नीड टू राइट डाउन दिस लाइन। बेटा ये लाइन एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी भी लिखोगे क्या अपने नोट्स में? मैंने पहले ही बोला है कि नोट्स को दूसरी बुक मत बनाइएगा, है कि नहीं है? आप बस ये लिख सकते हैं इसमें, अगर आपको एनसीईआरटी में लिखना है दैट 18th सेंचुरी इज नोन एज द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द मॉडर्न एंड द मिडीवियल इंडिया। शुड आई राइट इट डाउन? मेरी हैंडराइटिंग आई होप सबको समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है, मेरी आवाज सही से समझ में आ रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी आंख और आपके कान सब सही हैं, है कि नहीं? आज की क्लास, हाँ बेटा बस आज की क्लास ही छोटी रहेगी। बाकी आपको मैं सिलेबस में लाग थोड़ी कराऊंगी। मेडिवियल एंड मॉडर्न इंडिया, है ना? पहली क्लास है तो आप एंजॉय कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब व्हाट इज द टाइम लाइन? इस टाइमलाइन को आप एज इट इज चाहें तो याद कर सकते हैं। ओके। इस समय, अच्छा नाउ अंडरस्टैंड, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसी समय पे वो इवेंट नहीं हुआ होगा, उस इवेंट के होने का जरिया पहले से भी बनता हुआ जा रहा होगा। अंडरस्टूड? तो आप प्लीज ऐसा मत समझिए कि जैसे 2016 आया तो कुछ, सॉरी 2026 आया तो सपोज दैट आप अपना बर्थ डेट ही ले लीजिए। If you gonna turn to be 17 this year, उसका इवेंट 2025 से शुरू हो गया होगा ना, 2025 से आप अपना 16 वाली साइकिल फिनिश कर रहे होगे। तो वैसे ही इन टाइमलाइंस के साथ भी होता है। ठीक है। यस, कि उसी डेट पे स्पेसिफिकली वो चीज शुरू नहीं होती है। अंडरस्टैंड? सो 17/7 में क्या हुआ?
डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857, 1885 में आईएनसी फॉर्मेशन, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1919 में जलियांवाला बाग, द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग. Who all have gone to Jallianwala Bagh? May I know? A lot of people. I think you should visit these places and actually feel what are freedom fighters, what the people of that time must have gone. It's like when we visited and we thought of that scenario where, you know, they were surrounded by the Britishers and they, like it was very horrendous, and you'll understand. You will understand that it is very difficult to, but still, we should always be very thankful that whatever life we are having right now is because of them. कि एक छोटी सी चीज के लिए आप आवाज उठा सकते हो एंड यू गेट जस्टिस. सो यस. फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट एंड 1947 वी गॉट independence. Yes, you can write this down. Okay? अब इतने को हम सम अप करेंगे. एनीवन इन द चैट बॉक्स नीड टू सम अप दिस मच पार्ट जितना मैंने पढ़ाया है. And the person who has summed up, the student who has summed up properly, that name will be taken. And at the end of the class, I will write down the name of the very serious students who have done it very properly, who have taken the class very properly. And after every topic that I finish, I will ask you guys to conclude. Okay? Till then, I'll have a water break. Yes. Ria is a very attentive student, I feel. My very attentive student is Ria. Yes. अभी तो मैंने आपसे बोला ना कि मैं आपको एनसीईआरटी की लाइंस बताती रहूंगी जो डिकोड होनी रहेंगी. उन्हें लिख के मैं डिकोड कर दूंगी, जैसे मैंने ये ऊपर डिकोड किया है एक लाइन. ठीक है? हाँ जी. यस. सो आई टोल्ड यू अबाउट द whole event, okay, that caused the rise of the British Empire in India. First, what was the cause? That the Mughal Empire had rapidly declined. Then there was the formation of regional states. अब उस रीजनल स्टेट्स की वजह से ही ब्रिटिश को इजी हो गया टू अंडरस्टूड. यस. ब्रिटिश को इजी हो गया to take the powers in their hand, and because of the decline of the Mughal emperors, okay, the British got a butter plate, a butter walk to enter in India and conquest it and rule over us. Okay? इसके बाद I told you the timelines. This is the major dates that the event has happened. In 1707, there was decline of the Mughal Empire. In 1757, Battle of Plassey. In 1764, Battle of Buxar. In 1773, Regulating Act. 1857, Revolt of 1857. 1885, INC. Formation 1805, Partition of Bengal. 1919, Jallianwala Bagh. 1930, Civil Disobedience.
1942 we have Quit India movement, and 1947 it was the independence that we enjoy till now. Okay, understood? Now, let us start with the first event that has happened, the part one. Can you guys tell me, is this ink visible and okay, or should I take the white one? White one? White ले लूं? ओके, और कोई इंक अच्छी सी जिस पे चल सकती है? ये भी तो अच्छी है, व्हाइट जैसी है, लेट मी टेक व्हाइट ओनली। मैं सोच रही थी थोड़ा कलरफुल आप लोग को पढ़ाऊं, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। Is it with you guys or is it only me? I don't like writing on paper. I don't like writing with paper and pen a lot. The much I enjoy writing it with my pen tab on these PDF. I don't know why. Okay, why did Mughal Empire decline? Okay, first was the cause weak successors. The successors were not as strong as the prior emperors, hence, they were incapable of attaining the empire. अपने एम्पायर को सजल और खड़ा रखने में वो एम्परर्स जो थे वो केपेबल थे ही नहीं। ठीक है, इसकी वजह से पहला रीजन क्या था डिक्लाइन होने का, कि वो एम्परर्स जो थे वो बहुत वीक थे। उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, उनकी किंगडम अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितने उनके प्रायर सक्सेसर्स की थी। इसकी वजह से जो मुगल एम्पायर था वो वीक हो गया। ठीक है, नाउ इट्स विजिबल। बेटा अभी आप कहाँ रह गए, पीछे ही रह गए क्या? इट्स विजिबल। मैं तो आगे आ गई, तो डिसाइड भी कर लिया मैंने कौन सी यूज करनी है। ठीक है, अब आफ्टर औरंगजेब, जैसे कि अगर आपसे कभी पूछा जाता है ना मुगल एम्पायर से रिलेटेड, तो आप पहला समझिएगा कि मुगल एम्पायर जो है वो वीक, मतलब वो डिक्लाइन हुआ क्यों। तो उसके ना कॉजेस थे, जैसे वीक सक्सेसर हो गए, फिर मनसबदारी क्राइसिस हो गया, नोबल। यस, आई विल राइट इट डाउन राइट नाउ। अभी मैं लेक्चर दे लूं फिर लिखूं? आप बीच बीच में ऐसे बोलेंगे ना तो फिर मेरा फ्लो टूटेगा, आप समझिए। ठीक है, पहला क्या था? वीक एम्परर्स, जैसे कि आफ्टर औरंगजेब जो थे ना, आफ्टर औरंगजेब इन 1707, द other successors which tried to take the throne were not that apt. उनकी बेसिकली पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो इसकी वजह से डिक्लाइन था। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लो आप, बहादुर शाह वन हो गए, फिर जहां, यस, हो गया। पढ़ा लूं मैं आगे? Please see, if I am being friendly to you guys, okay, that doesn't mean that you start showing indiscipline in the chat box. It will be better that आप please realize करें that it is of your own good. If I just take the class and go back, कोई फायदा मुझे नहीं होने वाला है। मुझे पेपर नहीं देना है, पेपर आप लोगों को देना है। ठीक है, so you have to take out the 100% in me, and if I won't see, you know, inter very, you know, सीरियस एस्पिरेंट्स, मेरा भी सिर्फ काम होगा क्लास लेके चले जाना। मैं आपको इन डेप्थ उतनी चीजें पढ़ाऊंगी नहीं, सो प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, फर्स्ट वाज द वीक सक्सेसर। इन सबके एनसीईआरटी लाइन में कोट करूंगी, तो आप प्लीज परेशान मत हुए। ठीक है, आफ्टर औरंगजेब देयर वर सक्सेसर्स
who did not have good political understanding, जिसकी वजह से जिसकी वजह से द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड। ठीक है। अब इसमें एनसीईआरटी की एक लाइन मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। द मुगल एम्परर हु केम आफ्टर औरंगजेब लैक द एबिलिटी एंड द कैरेक्टर नेसेसरी टू मेंटेन द एम्पायर। जरूरी नहीं है कि बाप अच्छा है, इफ द फादर इज अ गुड किंग, द सन ऑल्सो प्रूव्स टू बी अ गुड किंग। ओके, यस और नो? अंडरस्टूड? ओके, माय पीपीटी, आई डिड नॉट सी पीपीटी पे तो सब लिखा हुआ है। ओके, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर कवरिंग इज द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब इसमें जरा, यस, सी इट्स ऑल रिटन हियर। ओके, तो अब आप जो बच्चे कहते हैं कि मैम हैंड राइटिंग, आपका भी काम सॉर्ट हो गया। आप कोई बहाना मुझे दे नहीं सकते हो नहीं पढ़ने के लिए। ठीक है। तो वीक सक्सेसर्स, शाह बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन, सॉरी, फिर जहांगीर शाह, एंड दीज नेम्स विच आर वेरी डिफिकल्ट। ओके, एंड फ्रीक्वेंट वॉर्स फॉर सक्सेशंस होते थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी जैसे मैंने बोला। और इसमें एनसीईआरटी लाइन आप अपनी कोट कर सकते हैं कि यहाँ पे शुड आई राइट डाउन द एनसीईआरटी, आई राइट डाउन द एनसीईआरटी लाइन रादर देन राइटिंग एवरीथिंग। ठीक है, मैं आपको आपकी एनसीईआरटी लाइन यहाँ पे कोट कर दे रही हूँ। इस पेज को, आई टेक दिस पेज एंड राइट डाउन द एनसीईआरटी लाइन। ठीक है। द मुगल एम्पायर emperors who came after Aurangzeb lacked the ability and character necessary to maintain the empire. Okay, now understand. The NCRT tells you in depth. The first one, the first, uh, sorry, the first paragraph that I told you, it had सच इन डेप्थ। आपको सब कुछ समझना पड़ेगा कि कुछ इवेंट्स हुए होंगे पास्ट में जिसकी वजह से हुआ। तो अब आप समझिए कि आपको मिडीवियल एंशियंट को इतना कनेक्ट करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री जो है कि आपने मिडीवियल पढ़ लिया उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया या कुछ स्किप करके इसको नहीं। एवरी इवेंट हैज समथिंग और द अदर। अगर आपको पता ही नहीं है कि औरंगजेब के बाद कौन से थ्रोन बेरर्स आए, उनमें क्या लैग ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, उनकी वजह से क्या हुआ, कौन से सक्सेशन फाइट हुए, तब तक आपको आगे समझ ही नहीं आएगा कि हमने ये टर्म यूज क्यों करा। कि उनके पास एबिलिटी ही नहीं थी उस एम्पायर को मेंटेन करने की। तभी मैंने कहा है कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट लर्निंग, इट इज अबाउट इवेंट्स। एक इवेंट्स जो है वो दूसरे इवेंट को कनेक्ट करता है। ठीक है। फिर इट वॉज मनसबदारी क्राइसिस, जिसमें शॉर्टेज ऑफ जागीर हुए थे, करप्शन होने लग गए थे, रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया था। जो आपकी आर्मी, द आर्मी विच इज वर्किंग फॉर योर सेफ्टी, वो अनपेड रहती थी, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। इसकी वजह से भी एक हम इसको भी हम एज अ कॉज लेते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें से सबसे मेन कॉज था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन। अगर कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं रहेगी तो फिर वो जगह वो सही से काम नहीं करेगी। फिर नोबल फैक्टराइजेशन। ठीक है, तुरानी फ्रैक्शन, ईरानी फ्रैक्शन, हिंदुस्तानी फैक्शंस, ये सब वीक सेंट्रल अथॉरिटीज, जैसे मैंने आपको रीजंस बताए वो हो गए थे। रीजनल स्टेट बनने लग गए थे, खुद ही इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए, बंगाल, अवध, हैदराबाद, पंजाब। ठीक है,
इन पे कोई इंपीरियल कंट्रोल था ही नहीं, ठीक है। और इसकी वजह से मतलब जो हमारा एम्पायर था, मुगल एम्पायर जो है, वो डिक्लाइन की तरफ जाने लगा। मराठा चैलेंज, ठीक है, एक्सपेंशंस, पेशवास के अंडर एक्सपेंशंस हो गया, ठीक है, मिलिट्री प्रेशर्स आने लगे, जो मुगल टेरिटोरियल्स थे वो डिक्लाइन होने लगे। समवेयर और दी अदर, सबसे एक्चुअली सबसे मेजर कॉज अगर हम इस चीज का पकड़े ना, कि इवेंट में क्या दिक्कत हुई, सबसे मेजर कॉज जो दिक्कत हुआ था ना, सब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसफंक्शनिंग की वजह से था। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ही सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपको कैसे पता होगा कि कहाँ पे किसको किस तरीके से फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना है। अगर आपका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो आपको कैसे पता रहेगा कि आपको अपने आर्मी को, मतलब विच आर दी फ्रंट बेरर्स जिनमें आपको इन्वेस्ट करना है टू टू टेक दैट पार्ट और टू टेक दैट किंगडम फॉरवर्ड, ठीक है। अब ऑफ कोर्स उस किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कोई द किंगडम, द पीपल इन द किंगडम, अगर वो सही नहीं है, वो खुश नहीं है, तो वो खुद रिवोल्ट करेंगे, सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होगी, तो रीजनल स्टेट बनेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि समवेयर और दी अदर जितने भी कॉजेस मैंने आपको डिक्लाइन के बताए, वो सब एक चीज पे डिपेंड करते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन का कॉज है, ठीक है। फिर बाकी सब चीज तो खुद अपने आप इंटरकनेक्टेड होने लगी, ठीक है। अब इसके बाद सबसे, अब जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, एक फॉरेन इन्वेजन होने लगा। फिर अब बाहर के लोग अपना दिमाग लगाने लगे आपके घर में, तो अब आपका घर उनके हिसाब से चलने लगा, तो अथॉरिटी उनको ज्यादा मिल गई, ठीक है। इसी की वजह से जो ब्रिटिश थे, उनके पास पावर आ गया टू रूल विद अस, ठीक है। अब आपका फाइनल टेक अवे आपके नोट्स में ये होना चाहिए, समझे। ये आपको पूरा चार्ट नहीं बनाना है, आपके नोट्स में की पॉइंट पे ये होना चाहिए। Hats off to the Takshastra editors. See, they have made such a good PDF कि आपको नोट्स बनाने के लिए भी पॉइंट्स उन्होंने लिख के दिए हैं। Yes or no? अब इसी में आपको देख सकते हैं कि एक PYQ फोकस पॉइंट भी है। Yes or no? अगर आपको दिख रहा हो तो I'll zoom out, then you can write down. Don't worry, I'll zoom it out. Okay? अब क्रिटिकली PYQ फोकस कहाँ होता है यूपीएससी का? क्रिटिकल एग्जाम, कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, to what extent did the internal weakness of the Mughal Empire contribute to the decline, and examine the impact of the foreign invasion on the decline of the Mughal Empire. अगर आप इसको चाहें तो यू कैन राइट इट एज अ लॉन्ग आंसर एंड सेंड इट टू मी। जितने लोगों को होता है ना कि हमें आंसर राइटिंग करनी है, आपको टॉपिक मिल गया, ठीक है, अंडरस्टूड। इतना टेक अवे समझ में आया? ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, शॉर्ट एंड प्रिसाइज क्लास, ठीक है। नेक्स्ट हम कल शुरू करेंगे with the second part, that is just, हाँ, I'll tell you, questions, PYQs, MCQs, दो MCQs I'll tell you, okay। यहां तक क्विकली क्विकली एवरीवन, मैं कुछ कह रही थी, आप लोगों ने मुझे भुला दिया, नहीं, यहां तक एवरीवन इन द चैट बॉक्स क्विकली कंक्लूड करें, एंड देन यू कैन लीव। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा कि 18th सेंचुरी को ट्रांजिशन पीरियड क्यों कहते हैं। सेकंड, हमने टाइमलाइन देखी, हमने ब्रिटिश के हावी होने का हमारे ऊपर कॉज देखा, और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का कॉज देखा। चार टॉपिक हमने कवर करे हैं आज, ठीक है। बाकी का मैं बाद में कवर करूंगी, ओके। थैंक यू सो मच। यस प्लीज, यू कैन राइट डाउन योर नोट्स। आई होप आज आधे पन्ने से ज्यादा नोट्स नहीं बने होंगे। अगर आप मेरा फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप मेरा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, इवन दैट इज वेरी ओके।
आपको पढ़ना है, आपको देखना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आंसर राइटिंग के लिए यू कैन यूज द पीवाईक्यू फोकस पॉइंट। ओके। देखिए आप कितना लिख सकते हैं इसको ना, एंशियंट से भी, एंशियंट और मिडीवियल से भी थोड़ा कोरिलेट करके लिखना, तो आपके आंसर्स अच्छे हो जाएंगे। है ना। एक्चुअली आंसर राइटिंग में ना वो आपका कॉम्प्रिहेंस चेक करते हैं, तो कितना अच्छा कंटेंट आप लिख सकते हो। कल का ओरिएंटेशन बेटा देख के आओ। कल का ओरिएंटेशन भी बता दो क्या। लैक ऑफ मोटिवेशन। बेटा अब यू हैव स्टार्टेड दिस जर्नी, इट्स योर ड्रीम, हाउ कैन यू लैक मोटिवेशन, यू टेल मी। पहली चीज, ऋषभ, स्टॉप, रियली स्टॉप। एनसीईआरटी